Good morning, student. In the previous video, we have seen statement pattern and logical equivalence. Now today we will learn next points, duality and quantifiers. So the first point, duality. See the definition. Two compound statements are said to be duals of each other if one can be obtained from the other by replacing and by or by and, C by T by C. Here T means tautology and C means contradiction, and capital T by F and F by T. That means in duality here we replace only and by and or by and. Tautology by contradiction and contradiction by tautology. Now see the examples. Write the dual of the following. So here given that the statement pattern and we write to dual of it. So dual is, now see this question, negation as it is, P statement as it is. Here we replace or by and by or by and by or. So this is the dual of this statement pattern. Now the second question, Radha and Sushmita cannot read Urdu. So here dual of this statement, Radha and, so here we replace and by or. So Radha or Sushmita cannot read Urdu. Next question, P or P and negation Q or T. So dual of this statement pattern, P as it is, here we replace or by and, again P as it is, here we replace and by or, negation Q as it is, here we replace or by and small t, T means tautology, so we replace this tautology by contradiction C. So this is the dual of this statement pattern. See, this is very easy point. That's why many students ignore it, but remember this type of question were asked in the previous board exam. So don't ignore it, do it seriously. So duality. Now the next point is quantifiers. Quantifiers and quantified statement. There are two quantifiers, universal quantifier and existential quantifier. The symbol like this, which is like rotated A, stands for all values of, and this is known as universal quantifier. And the second, the symbol like this, which is like rotated E, stands for there exist. This is known as an existential quantifier. An open sentence with a quantifier becomes a statement and is called a quantified statement. That means open sentence with quantifiers, which is called as quantified statement. Now two type of questions are usually asked on quantifiers. First is, use quantifiers to convert each of the following open sentences defined on N into a true statement. That means here we use quantifiers. देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इन इक्वेशन या फिर कोई भी कंडीशन दी है, आपको यहाँ पे सुटेबल क्वांटिफायर यूज़ करना है. सो कौन सा क्वांटिफायर यूज़ करना है, तो कैसे देखेंगे, देखो अब सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है 3x - 4 < 9, बट यहाँ पे एक सेट मैंने डिफरेंट लिए है. यहाँ पे ए सेट लिया है 1 2 3 4 एंड एन सेट लिया है नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सो लेट्स चेक. If we put the value of 1 in this condition, so see 3 - 4, that means -1 < 9. So value of x equal to 1 satisfies this condition. If we put value of x equal to 2, so 3 2s are 6, 6 - 4, 2 < 9. If we put x equal to 3, 3 3s are 9, 9 - 4, 5, 5 < 9. If we put x equal to 4, 4 3s are 12, 12 - 4, 8, 8 < 9. So see, there are 4 values and every value of set A satisfies this condition. देखो ये चारों वैल्यू अगर मैं इसमें x की जगह पे पुट करती हूँ तो यहाँ पे हमें ये कंडीशंस मिल रहे हैं. तो ये जो नंबर्स मिल रहे हैं वो सभी नंबर्स < 9 है, मतलब ये चारों वैल्यूज़ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं.
तो यहाँ पे सिंबल आएगा फॉर ऑल। फॉर ऑल सिंबल कब आएगा? जब उस सेट में से सभी वैल्यूज़ वो कंडीशन सेटिस्फाई करे। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यहाँ पे जो सेट है तो वह इधर लिखना है, x बिलोंग्स टू a such that given condition 3x minus 4 less than 9. So here we write symbol for all. अब वही सेम क्वेश्चन है, बस सेट डिफरेंट लिया मैंने, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। तो देखो 4 तक वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है तो हमें ये कंडीशन मिले। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करते तो देखो 5 3s आर 15, 15 माइनस 4 दैट मीन्स 11, 11 लेस देन 9। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 11 इज़ नॉट लेस देन 9 विच इज़ ग्रेटर देन 9। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 1 से लेके 4 तक वैल्यू पुट करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन 5 पुट करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सिंबल आएगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, हियर सेट इज n सच दैट 3x माइनस 4 लेस देन 9। ठीक है, तो फॉर ऑल का सिंबल कब यूज़ करना है? तो उस सेट में से सभी वैल्यूज़ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉर ऑल आएगा। और देयर एग्जिस्ट कब यूज़ करना है? जब उस सेट में से एटलीस्ट 1 वैल्यू वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वहाँ पे देयर एग्जिस्ट का सिंबल आएगा। सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट 3x माइनस 4 लेस देन 9। सो सी द एग्जाम्पल, use quantifiers to convert each of the following open sentences defined on n, here n means natural numbers, into a true statement। मतलब हमें ऐसा क्वान्टिफायर्स यहाँ पे यूज़ करना है कि वो स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने देखा अभी जस्ट 3x माइनस 4 लेस देन 9, उसमें नेचुरल नंबर में से सिर्फ 4 ही वैल्यू वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का सिंबल आएगा। सो वी राइट हियर देयर एग्जिस्ट x belongs to n such that 3x minus 4 less than 9। तो यहाँ पे मैंने देयर एग्जिस्ट का सिंबल किया क्योंकि नेचुरल नंबर में से सभी वैल्यूज़ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सो कौन से वैल्यू नहीं कर रहे हैं या फिर कौन से वैल्यू कर रहे हैं वो भी लिख सकते हो। सो सिंस x इक्वल टू 1 2 3 4 बिलोंग्स टू n सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, तो सिर्फ 4 ही वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो देयरफॉर इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ट्रू कब आएगा? जब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का सिंबल आएगा। तो अगर इसकी जगह पे मैं फॉर ऑल का सिंबल यूज़ करती हूँ तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हियर n मीन्स नेचुरल नंबर्स। So if we put here 1, so we know that 1 square which is equal to 1, so n equal to 1 satisfies this condition. If we put here n equal to 2, then 2 square, that means 4 is also greater than equal to 1. If we put here n equal to 3, so 3 square is 9 is greater than 1. So every value in natural n will satisfy this condition. Therefore here we get symbol for all n belongs to capital N such that n square greater than equal to 1। क्यों लिखा मैंने फॉर ऑल का सिंबल? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर में से सभी वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। एक एक वैल्यू पुट करके देखो, सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे फॉर ऑल का सिंबल आ गया है। सो हियर वी राइट एवरी वैल्यू in n, that means natural number, satisfies this condition, n square greater than equal to 1. So it is a true statement. Now the third question, y plus 4 greater than 6. So let's check. Here n means natural numbers. It starts from 1 2 3 4 and so on. So if you put here 1, value of y is 1, so 1 plus 4 which is greater than 6, so 5 greater than 6. So first value ये condition satisfy नहीं कर रही है, 5 is not greater than 6. If we put here 2, so 2 plus 4 greater than 6, 6 greater than 6. अब यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है, so ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट
इफ़ यू पुट हियर 3 प्लस 4 ग्रेटर दैन 6, 7 ग्रेटर दैन 6, ठीक है, x की y की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब पहले 2 वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसके आगे की वैल्यूज़ के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे सिंबल आएगा देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू n सच दैट y plus 4 greater than 6. So here we write since y equal to 1 2 पहली दो वैल्यू belongs to n does not satisfy this condition y plus 4 greater than 6. तो ये दो वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए हमने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का सिंबल लिखा। therefore it is a true statement. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, यूज क्वांटिफायर्स एंड कन्वर्ट दिस ओपन सेंटेंस इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमने सुटेबल क्वांटिफायर यूज़ किया और इस स्टेटमेंट को हमने ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। और एक टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जो कि है सी, इफ बी इक्वल टू 2 3 5 6 7, तो यहाँ पे आपको सेट बी दिया है 2 3 5 6 7, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। अब स्टार्टिंग में ही जो क्वांटिफायर दिया है उसी का यूज़ करके आप उसकी ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। फॉर ऑल मतलब इस सेट में से सभी वैल्यूज़ ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो देखो सभी वैल्यूज़ प्राइम नंबर है क्या, 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 6 इज़ नॉट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे वैल्यू 6 जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो जबकि यहाँ पे क्वांटिफायर यूनिवर्सल है तो हमें सभी वैल्यू सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स आएगा। सो हियर वी राइट सिंस x equal to 6 which is belongs to B does not satisfy this condition, x is prime number. Therefore given statement is false, so its truth value is f. ठीक है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लेकिन फॉर ऑल का सिंबल है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू b सच दैट n प्लस 6 ग्रेटर दैन 12। अब देखो सेट b, तो n की वैल्यू जो है सेट में से पुट करना है। तो देखो n की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 6 8 आएगा, 8 ग्रेटर दैन 12। तो पहली वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन 12। तो अगर 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 6 9 आएगा, 9 इज़ ग्रेटर दैन 12, नो। तो दूसरी वैल्यू भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तीसरी वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 6 11 आ जाएगा, 11 ग्रेटर दैन 12, नहीं, तीसरी वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 6 पुट करेंगे तो 6 प्लस 6 12 इज़ ग्रेटर दैन 12, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, हमें 12 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो 7 पुट करेंगे तो 7 प्लस 6 13 ग्रेटर दैन 12, मतलब इस सेट में से सिर्फ एक ही वैल्यू 7 सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे सिंबल क्या है, देयर एग्जिस्ट का। देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट 1 वैल्यू, तो एक वैल्यू तो सेटिस्फाई हो रही है। सो हियर वी राइट सिंस n equal to 7 belongs to B satisfies this condition. So satisfies n plus 6 greater than 12, एक ही वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। Therefore given statement is true, so its truth value is t. Now the next question, for all y belongs to B such that
y माइनस 5 बिलोंग्स टू n। तो b क्या है देखो, 2 3 5 6 7। सो b, मैं यहाँ पे b लिख के लेती हूँ, 2 3 5 6 7। तो देखो 1 बाय 1 इसमें पुट करके देखते, 2 पुट करेंगे, सो 2 माइनस 5, माइनस 3 बिलोंग्स टू n, नहीं, माइनस 3 नेगेटिव नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। सो 3 पुट करके देखो, 3 माइनस 5, माइनस 2 बिलोंग्स टू n, तो ये वैल्यू भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5, 0 बिलोंग्स टू n, ये वैल्यू भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है क्योंकि 0 नहीं आता है नेचुरल नंबर में। 6 माइनस 5, 1 बिलोंग्स टू n, तो 6 और 7 ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन पहले 3 वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा सिंस y इक्वल टू 2 3 5 बिलोंग्स टू b does not satisfy y minus 5 belongs to n, therefore it is given statement is false, therefore its truth value is f. So these solved examples are not sufficient to clear the concept. You should practice examples in the textbook. If you find any difficulty, we have our WhatsApp group. You can ask your doubts in WhatsApp groups. Thanks for watching this video. We will meet next section.